Good morning. We read dimensional analysis. We take another question on the basis of dimensional analysis. The question is, this is the van der Waals gas equation. Okay, ये इससे बोलते हैं, this is known as van der Waals gas equation. Okay, in this gas equation, P is pressure. What is P? P is pressure. And V is volume. R is gas constant and T is temperature. Okay, but we don't need of dimension of R and T. Here we have to find the dimension of A and B. What is the question? Find dimension of A and B. हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी. आपको ए और बी का क्या फाइंड करना है? डायमेंशन फाइंड करना है. ओके, देखिए, वी अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस कंसेप्ट. इफ there are two terms are in addition or subtraction in any formula, then they both terms have same dimension. Here P plus A upon V square एडिशन में है, सो द डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर, और वी कैन आल्सो राइट डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर. लाइक दैट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B. ओके, डायमेंशन ऑफ V is equal to dimension of B. Now if we have to find the dimension of A and B, then we have to know the dimension of pressure and dimension of volume. Then what is the dimension of pressure? Then what is the pressure? सबसे पहले आप देखिए प्रेशर क्या होता है. What is the pressure? Pressure is force per unit area. What is pressure? Pressure is force per unit area. Force per unit area is pressure. Then what is the dimension of pressure? Dimension of pressure is dimension of force divided by dimension of area, or we can write dimension of Newton divided by dimension of area. Then dimension of Newton is ml t to the power minus 2, and dimension of meter is l to the power 2. Then it becomes m l to the power minus 1 and t to the power minus 2. This is dimension of pressure. M l to the power minus 1 and t to the power minus 2. What is the dimension of V? Then dimension of V is the pressure. Then dimension of pressure. Okay, समझ गए आप? Then dimension of volume. What is the dimension of volume? Then what is volume? Unit of volume meter cube. Unit of volume is meter cube. Then dimension of volume is m naught l cube t to the power naught or t to the power 0. m0 l cube t to t 0. Now we have to find the dimension of A. Then dimension of, मैं डायमेंशन में डायमेंशन ऑफ इस तरह लिख देते हैं हम शॉर्ट में. डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी. ओके, dimension of A upon V square is equal to dimension of P. Then dimension of A upon V square is dimension of A. Dimension of A divided by dimension of V square. Then dimension of V is L cube. So dimension of V square is L to the power dimension of V square. चलिए एक बार तो लिखते हैं, dimension of V square equal to dimension of P. What is the dimension of P? Dimension of P is m l to the power minus 1 t to the power minus 2. Okay. Then dimension
ऑफ ए इक्वल टू एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 मल्टीप्लाई विद डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, देन डायमेंशन ऑफ वी इज एल क्यूब, देन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर इज एल टू द पावर 6, देन इट बिकम्स dimension of A equal to m n to the power 5 and t to the power -2. This is the dimension of A. Now what is the dimension of B? Then dimension of B is equal to the dimension of volume V. So the dimension of B is equal to dimension of volume. Okay, then dimension of B equal to L to the power 3 or m to the power 0, L to the power 3 and t to the power 0. This is the dimension of B. This is dimension of B and this is the dimension of B. Okay, now we take some limitations of dimensional analysis. देखिए, जब हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो देयर आर सम लिमिटेशंस. व्हाट इज द यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? वी कैन कन्वर्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम. वी कैन डिराइव फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय द गिवन रिलेशंस. गिवन जैसे गिवन है T इज डिपेंड्स ऑन L एंड G, देन फाइंड द फॉर्मूला फॉर T. ओके, देन एंड वी कैन चेक दैट एनी फिजिकल फॉर्मूला इज वैलिड और नॉट वैलिड. ये हम कर चुके हैं. दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. नाउ वी टेक सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और इनके आपको नोट्स भेजेंगे. आपको यू हैव टू राइट डाउन these limitations of dimensional analysis in your notebook. First of all, I have to know the quantities of which a particular physical quantity depends. If we want to derive a formula for any physical quantity, then we have to know that physical quantities are depends on which physical quantities. किन पर डिपेंड करती है? जैसे for example, we can take if t के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है टाइम पीरियड के लिए, कर चुके हम, ध्यान दीजिएगा. देन वी हैव टू नो दैट टी इज डिपेंड्स ऑन एल एंड जी. नाउ वी कैन डेराइव फॉर्मूला फॉर टी बाय द डायमेंशनल एनालिसिस. बट इफ वी डोंट नो दैट टी डिपेंड्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटीज, देन वी डोंट डेराइव द फॉर्मूला. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, बाय दिस मेथड we can derive formula only for formulas which have only मतलब प्रोडक्ट टाइप फॉर्मूला हो. एडिशन टाइप फॉर्मूलाज को हम इससे डराइव नहीं कर सकेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ फॉर्मूला इज एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट का एग्जांपल हो गया. सेकंड में देखिए, सेकंड यूज में, इफ फॉर्मूला इज एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस फॉर्मूला वी कैन नॉट डेराइव दिस फॉर्मूला बाय द डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, बिकॉज दिस फॉर्मूला हैव टू टर्म्स, तो बीच में प्लस माइनस या टू टर्म्स आ जाएंगी. वी कैन नॉट डेराइव दैट टाइप फॉर्मूला बाय द डायमेंशनल एनालिसिस. थर्ड, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशंस कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन. देखिए, व्हेन वी डेराइव दिस फॉर्मूला देन वी टेक दैट t इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी. तो हमने एक डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट लिया था एंड वी डेराइव दैट फॉर्मूला आया था ये. ओके, ये फॉर्मूला हमें मिला था. तो इस k की वैल्यू, एक्चुअल जो फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक टॉपिक आएगा उसमें, वहाँ पर k की वैल्यू 2 पाई आएगी. बट बाय द डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ k इज 2 पाई. तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएंगी डेरिवेशंस में, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते. ये मतलब है नंबर थर्ड पॉइंट का. नंबर फोर्थ पॉइंट इज मेथड वर्क्स ओनली इफ देर आर एज मेनी इक्वेशन अवेलेबल एज देर आर अननोन्स. देखिए, इसे समझिए आप. नंबर 4, अगर अननोन्स, जैसे आपने किसी एक्स फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड करनी है, या
हम लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड दिस ए इज डिपेंड्स ऑन बी सी डी ई एफ, ये डिफरेंट 5 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, और ए का जो डायमेंशन है उसमें ओनली एम एल एंड टी आ रहे हैं। यहाँ पर ए बी सी डी ई अननोन्स की वैल्यू आपने ले लिया, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। बट वेन जब आप इक्वेशंस बनाएंगे तो इधर m का पावर इधर m का पावर सेम करेंगे, इधर t l का पावर इधर l का पावर सेम करेंगे, इधर t का पावर इधर t का पावर सेम करेंगे। ओके, देन वी गोट ओनली 3 इक्वेशंस बट अननोन्स आर 5। वी कैन नॉट फाइंड 5 अननोन्स बाय द 3 इक्वेशंस। यहाँ रूल क्या होता है, जितने अननोन्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस होना कंपलसरी है। So we cannot deduce this type of formula by the dimensional analysis. Okay dear students, thank you.